Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. सो फ्रेंड्स अभी तक बिहार जुडिशल सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम पेपर हमें मिले हैं फ्रॉम ईयर 2000 टू 2020 एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी ऑल क्वेश्चंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. Next 106, the Sale of Goods Act deals with the movable goods only. A is the answer. Next 117, which of the following is not an implied condition in a contract of sale? कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेज. कंडीशन एज टू टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, सैम्पल है, ये नहीं है. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 118, द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट. ए इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया, कौन सेक्शन है ये? दैट इज सेक्शन 50 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. Next 122, the meaning of term caveat emptor is that the buyer beware. A is the answer. Next 123, the unpaid seller can exercise his right of lien over the goods for price of goods, storage charges, lawful charges, all of the above. D is the answer. And ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है right of lien का? Section 47 Sale of Goods Act. Next 12, goods within the meaning of section 27 of the Sale of Goods Act is except actionable claim and money. Definition में लिखा हुआ है other than actionable claim and money, so neither A nor B. D is the answer. Next 13, under section 26 of Sale of Goods Act, future goods means goods which are not yet in existence. Obviously A is the answer. Next 14, Sale of Goods Act come into force on 1st July 1930. A is the answer. Next 15, the meaning of term caveat emptor is buyer beware. C is the answer. Next 16, which of the following are goods within the meaning of section 27 of Sale of Goods Act? So things attached to land which are agreed to swed before sale. Before sale swed कर लेंगे तो that would be good. Things forming part of the land agreed to be swed before sale. तो ये भी हो जाएगा both either A or B. C is the answer. Next 51, in a contract for a sale of specific good, if at a time of the contract goods have without the knowledge of seller perished, then the contract is voidable at the option of buyer. If a contract is void for both the parties, void रहेगा because both party was unknown that the goods was perished. So C is the answer. Next 52, in an agreement to sell goods on terms that the price is to be fixed by the valuation of third party, but such third party fails to make the valuation, then the buyer seller cannot make the valuation and contract become void. D is the answer. एग्रीमेंट की टर्म की थर्ड पार्टी करेगी, थर्ड पार्टी ने किया नहीं तो दोनों बायर करेगा, मैं कर देता हूँ, सेलर करेगा, मैं करूँगा, मेरे अकॉर्डिंग होगा तो फिर उससे बेटर क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दें. Next 53, Sohan, a fraudulent person posing himself a respectable person, purchased a valuable ring from Mohan, a shopkeeper, by giving him a check. Check was dishonored, but before the fraud could be detected, Sohan pledged the ring with Rohan, who acted in good faith and without notice of Sohan's defect of title. What is correct position? Mohan can sue Sohan, the buyer, to recover the ring. Yes, he can sue. Rohan's title to the ring is good against Mohan and Sohan, hence will retain the ring. This is also correct, but this is B is most appropriate. A भी गलत नहीं है, obviously वो तो केस तो उसके खिलाफ करेगा ही करेगा, but this is most appropriate. B is the answer. Next 54, a toy dealer displayed in his shop window some plastic toy catapults
B. A child of 6 years was attracted to the toys and one plastic toy catapult was bought from the shop after discussion with the shopkeeper. While the child was using it, a toy catapult broke off and entered the left eye of the child, which had to be removed. The case is filed against the seller for damages. There is contention that it was sale by description, hence the seller is liable for damages as the toy was not of merchantable quality. या फिर नॉर्मल सेल बायर बिवेयर होगा, या फिर सेल बाय सैंपल, सैंपल दिखाया ही नहीं था, या फिर डी आफ्टर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड वाज ट्रांसफर टू द बायर हैज द सेलर नो। भाई वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का तो होना चाहिए, थोड़ी है मैं थोड़ा सा खेला और हाथ में आ गया, आईज इंजर कर दी तो बच्चे की आंख चली गई। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 55, ए सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी एंड डिलीवर द गुड्स टू बी टू बायर शिपिंग एजेंट हु हैड put them on board a ship. However, the goods were returned to the seller for repacking. Then the goods were still with the seller. The buyer became insolvent. The seller, being unpaid, refused to return the goods. Now, see, this is a tricky question. First, they are saying that वो शिप पर भेज दिए गए थे, मतलब सेलर की पावर से वो चले गए थे और शिप पर पहुंचा दिए गए। फिर वो कह रहे दोबारा से वो रीपैकिंग के लिए आए सेलर के पास, मतलब नाउ द सेलर हैज़ अ सेकेंडरी राइट। सो अगर वो शिप पर नहीं भेजे होते, उसके पास ही रहते, तो उसका वहाँ पर राइट टू लियन भी रहता। बट यहाँ पर उसका राइट टू, जैसे ही वो अपने गुड से पार्ट हुआ, मतलब उससे अलग हुआ, वहाँ पर उसका राइट टू लियन जो है ख़त्म हो गया। नाउ दो द बायर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, द सेलर टू हैज़ लॉस्ट हिज राइट ऑफ लियन ऑन गुड्स, द गुड्स बिलोंग टू द बायर, बायर को पे करना पड़ेगा उसके लिए। सी इज़ द आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उसके पास वापस तो आ गया, बट वापस जो आया है वो उसके पास एज अ बेली आया है, मतलब द सेलर इज नाउ इज वर्किंग एज अ बेली, वो रीपैक करके उसको वापस देगा। नेक्स्ट 51, अब आगे सेल ऑफ गुड्स है क्वेश्चन। एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन व्हेन ही हैज डिलीवर्ड द गुड्स टू द बायर। जब गुड्स डिलीवर कर दी फिर लियन कैसा हो गया, फिर तो बायर हैज लॉफुली ऑब्टेन्ड द पोजेशन, तब नहीं होगा। हैज वेव्ड, तो वेव्ड कर दिया, फिर कैसा लियन। व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तब लियन हो जाएगा। डी इज द आंसर। ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये है सेक्शन 47 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। डेफिनेशन कितने में गुड्स की? सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ? ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स। तो नॉट इंक्लूडेड पूछा है, तो ए इसका आंसर हो गया। ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास भी है। नेक्स्ट 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कंडीशन एंड वारंटीज आर स्टिपुलेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिल्कुल ठीक है। स्टिपुलेशन एज वारंटी मे नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन। वारंटी कंडीशन बन सकती है, बट कंडीशन वारंटी नहीं बन सकती है। सेक्शन 13 मेंशंस दैट, ठीक है ना। कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर है वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें नोट करेक्ट क्या है? फिर बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? कंडीशन वारंटीज का सेक्शन है 12। नेक्स्ट 54, ए सेलर सेल्स अंडरगारमेंट व्हिच कॉजेस स्किन डिजीज टू द बायर, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर? ही इज लायबल फॉर द ब्रीच वारंटी या फिर liable for the breach of condition? If you're not liable, buyer should be careful. He is liable for the breach of condition. जो भी चीज़ आप बेच रहे हो किसी को हर्ट नहीं करनी चाहिए। बी इसका आंसर हो जाएगा। ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया ये। नेक्स्ट 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब क्या होता है? नो वन कैन पास द बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। तो सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ये है सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज सेक्शन 29, दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। फिर है सेल बाय सेलर और बायर इन पोजेशन, ये सेल बाय बायर यहाँ पर है, तो ये दोनों जो है दिस इज सेक्शन 30 में लिखा हुआ है सेल बाय सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल। बिफोर सेल नहीं है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बहुत। तो सी इसका आंसर रहेगा। अब यहाँ स्टार्ट हो गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट 31, व्हाट डज द टर्म फ्यूचर गुड्स मीन्स अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट।
तो क्या होता है वो, देखिए जो डेफिनेशन लिखी हुई है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब वो उस टाइम पर जो है विच आर नॉट इन द एग्जिस्टेंस। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 32, आंसर एज टू विच पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें बताना हमको नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। तो सेल क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम वेयर एज दी एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट्स जस्ट इन रेम, नो, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज देखिए सेल हो गई मतलब वो कंप्लीट हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, बट एग्रीमेंट टू सेल मतलब हम उसको करेंगे। जस्ट इन रैम कैसे हुआ, वो पर्सोनम ही रहेगा वो, क्योंकि एग्रीमेंट तो दो पार्टीज के बीच में ही हुआ ना। जस्ट इन रैम का मतलब क्या होता है, जनरल पब्लिक, ठीक है, और पर्सोनम मतलब फॉर प्राइवेट पर्सनस। तो बी इसका आंसर है, ये करेक्ट नहीं है। बाकी देखिए सेल अफेक्टेड ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स बाय बट एग्रीमेंट टू सेल गिव्स आइदर अ पार्टी रेमेडी और एनी डिफॉल्ट फुलफिलिंग दिस पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। ए भी ठीक है, सी भी ठीक है। 34, in the following statement which one is incorrect when the sale is made by an auctioneer of goods and the issue is to pass a good title to the buyer। तो क्या होगा, देखिए ऑक्शन है यहाँ पर, उसमें बताना हमें इनकरेक्ट। तो ही इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, ऑब्वियसली द सेल इज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ एज एन ओनर ऑफ द गुड्स। तो एज ऑनर थोड़ी होगा, एज एन एजेंट होगा, एजेंट टू द ओनर ऑफ द गुड्स। तो ये हो गया गलत। फिर है बायर एक्ट्स इन गुड फेथ, यस। फिर है द बायर हैड नो नोटिस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल, ये भी ठीक है। तो इसमें गलत क्या हुआ, फिर बी इज द आंसर। नेक्स्ट 35, a seller delivers to the buyer a larger quantity of goods than what was ordered, which is the following is incorrect। अब हर जगह इनकरेक्ट ही पूछे, देखिए यहाँ पर भी इनकरेक्ट पूछा हुआ है। फिर द बायर हैज़ राइट टू रिजेक्ट द होल गुड्स, फिर द बायर हैज़ राइट टू एक्सेप्ट द होल गुड्स, यस। बायर हैज़ राइट टू एक्सेप्ट ओनली द गुड्स ऑर्डर एंड रिजेक्ट द रेस्ट, यस। बायर कैन रिटेन द होल गुड्स बट मेक द पेमेंट ओनली फॉर द गुड्स ऑर्डर, नो, ये गलत है, डी इसका आंसर रहेगा। एंड दिस इज सेक्शन 37 सब सेक्शन 2। 37 टॉक्स अबाउट व्हेन रॉन्ग क्वांटिटी हैज़ बीन डिलीवर्ड, और 37 का 2 क्या कहता है, जब लार्ज क्वांटिटी दे दी आपने, 1 में है कम दिया और 2 में क्या है एक्स्ट्रा दे दिया। तो या तो आप पूरे का पे करो, अपने पूरा रखना है तो, अगर जितना रखना है उतना रख लो, बाकी छोड़ दो। सो फ्रेंड्स, ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट फॉर बिहार जुडिशियल सर्विसेज। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.